Good morning, and today I am going to explain you law of constant proportions, which is also known as law of definite proportions. Okay, law of definite proportions. So earlier we studied law of conservation of mass under law of chemical combinations, and this is the second law which we will study, that law of what is law of constant proportions. Actually, Lavoisier along with other scientists, he came to conclusion that many elements, many compounds that he studied, and he found that those elements are found to consist of same elements. Suppose if we are talking about water, everyone knows the formula, chemical formula of water, which is H2O, right? And we know that water always consists of hydrogen and oxygen, right? Similarly, if I talk about ammonia, NH3, this is what? Ammonia. So I will give you 2-3 examples to explain the law. Or carbon dioxide. You know the formula. I think from 6th or 7th class you must be knowing the formula of carbon dioxide, which is what? CO2. So if you will study water, you will always find that water consists of hydrogen and oxygen. If you will talk about ammonia, you will always see that ammonia consists of nitrogen, N for nitrogen and H for hydrogen, right? If you will study carbon dioxide, you will always find again the same thing, that carbon dioxide always consists of carbon and oxygen. ओके, अब प्रोपोर्शंस की हम बात समझते हैं कि क्या ये लॉ है. दिस लॉ वाज एक्चुअली गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट इन 1799. And what is that law? I am going to write that law and then I will explain you with these examples that what that law means. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass. In definite proportions by mass. This is very important. This was given by what? By Proust. Okay. So let us understand the law, the meaning of that law. Actually, suppose you have say you have 9 gram of water. कितना वाटर है आपके पास? 9 ग्राम वाटर है. और अगर आप इस वाटर को में इलेक्ट्रिसिटी पास करें, आपने किसी बीकर में लिया, राइट, और इसको थोड़ा कंडक्टिंग बनाया, और उसमें आप अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो व्हाट यू विल फाइंड दैट 9 ग्राम ऑफ वाटर विल ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी विल डिकम्पोज इनटू व्हाट? 1 ग्राम. इट विल गिव हाइड्रोजन, ओके, एंड ऑक्सीजन. हमें पहले ये तो पता ही है. अब मैं फिर बैलेंस लिखने लगूंगी. अब आप ये समझिए, आपके पास 9 ग्राम वाटर था. अभी हम यहाँ पे से मास हटा देते हैं. यू हैव 9 ग्राम वाटर. ये कितना हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी 1 ग्राम, ओके, और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल गिव 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. अब आप ये देखिए फॉर्मूला, आप H2O लिखते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है? H2O लिखते हैं फॉर्मूला वाटर का. अगर आप वाटर के अगर आपने एटॉमिक मासेस आपको याद है, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 35. देखिए बच्चों, ये एटॉमिक मासेस आपके गिवन हैं, राइट. विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 35. ये दिस इज अ टेबल and it is there are only 10-12 elements given. आप बस इसके atomic masses अच्छे से याद कर लीजिए. You will be able to solve many questions based on law of conservation of mass, constant proportions और on molecular masses. कुछ भी आपको दिया जाएगा आप solve कर लेंगे. So what you need to do right now is to learn atomic masses, okay, which are given on पेज नंबर 35. बस इसको याद करना है आपको. बहुत ही सिंपल है याद करना, ठीक है. अब आपके पास वाटर है, ठीक है. अब वाटर का भी नो, अब इफ यू विल सी द टेबल, वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.
1 U, और ऑक्सीजन का 16 U। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U, मैंने वाटर बोल दिया था। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास है 16 U। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2। तो 1/2 अगर आप इसका रेशो निकालें इस टू ऑक्सीजन 16, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन इस टू आप ऑक्सीजन का अगर रेशो निकाल रहे हैं कि वाटर में कितना है, तो वो कितना आएगा, 2:16 आया। इसको आप कैंसिल करेंगे, यू विल कम आउट विद 1:8। यानी कहीं का भी आप वाटर ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए वाटर, इफ़ इट इज़ वेल वाटर, स्प्रिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, कुछ भी वाटर है, टैप वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, सब में आपको रेशो क्या मिलेगा, प्रोपोर्शन क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8। यानी 9 ग्राम आपने वाटर डिकम्पोज किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, एंड व्हेन इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट विल यील्ड यू व्हाट, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये शायद क्लियर हो गया होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया मैंने कैसे रेशो निकाला, 1:8 बाय नोइंग एटॉमिक मासेस विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 35। अभी 1-2 एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको कि व्हाट इज। तो ये नोट कर लेना है, पेज नंबर 35 पे जो भी एटॉमिक मासेस हैं वो आपको याद करनी है। सपोज आपके पास अमोनिया है NH3, राइट। आपको मैं पूछूं कि इसके आप प्रोपोर्शन बताइए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशो में प्रेजेंट है। सो व्हाट यू विल डू, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14:, हाइड्रोजन का 1, बट देर आर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो 1:3 तो आप करेंगे, 14:3, विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। 14:3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी कॉमन फैक्टर, दैट इज वाई दिस इज द रेशो 14:3 फॉर अमोनिया। यानी अमोनिया में रेशो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, नाइट्रोजन इज हाइड्रोजन 14:3। ऐसे ही आप CO2 देखिए, दिस इज CO2, CO2 इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, ये आप जल्दी से टेबल खोल के देख सकते हैं, 12U, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U। 12:, अब आप खुद जानते हैं देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हाट आई विल डू, 2 × 16 कितना हो जाएगा, 12:32, कैंसिल कर सकते हैं, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 3:8 आ गया। तो कितने भी n नंबर ऑफ जितने भी आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, अगर आपसे कोई रेशो ही पूछ ले तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या रेशो होगा। ओके, अब आपको ये जो आपने नॉलेज अभी गेन करी है, दिस यू विल नो लेटर कि हाउ यू कैन यूज दिस नॉलेज इन न्यूमेरिकल्स। मैंने देखी थी आपके NCERT में क्वेश्चन है परसेंटेज पर बेस्ड, ठीक है। उसमें ये है कि परसेंटेज आपको एलिमेंट्स की निकालनी है, वो मैं अभी ठीक से देख लूँगी। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज आपसे पूछी जा रही है कि कितना % वो प्रेजेंट है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो भी मास गिवन होगा, मास ऑफ द एलिमेंट, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ भी है क्वेश्चंस अपने नोटबुक में, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द होल कंपाउंड, ओके, into 100. So this formula will help you in solving numericals based on percentage of an element in a compound, how you can calculate percentage, right? Write this formula and then everything will come easy to you when you solve numericals based on this portion, right? Children, this is NCERT question number 2 on page number, in text question it is given on page number, let me see, 33. It is given on page number 33. So according to our sequence, it is actually question number 1 for law of constant proportions. Previous question number 1 from NCERT is already solved. Okay, now this is question number 2 as per your book sequence. लेकिन law of constant proportions अब ये नया टॉपिक है, तो उस पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे हिसाब से,
ओके अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, ये आप खुद भी अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं, isn't it? By mass to form water, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? कितनी ग्राम दी हुई है? 3 ग्राम। तो हमें क्या पता है, what we will write? What we will write that 1 gram of hydrogen, देखिए मैं इसी से लिख रही हूँ जो रेशो दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रेशो निकाला नहीं है, बट आपको इतना याद होना चाहिए कि वाटर की जब बात होगी तो रेशो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन क्या होगा, 1:8। तो आपसे पूछा है 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी जब वाटर बनाए, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इट रिक्वायर्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। बहुत ही सिंपल है, 1 ग्राम यहाँ पर है, अब आप यहाँ पे therefore 3 gram of hydrogen gas requires how much? 3 into 8 gram of oxygen gas। वो कितना हो जाएगा आपका, 3 8 24 gram। It means that 3 gram of hydrogen gas require 24 gram of oxygen gas. That is the answer.